Hello everyone. Today we will discuss beautiful short story Anne of the Green Gables. It was written by Lucy Maud Montgomery. She is a Canadian short story writer and she wrote many sequels of this story. She was also inspired by Formula Anne, orphan story that was very popular in the Victorian era. And setting sets in the Green Gable form in the fictional town of Avonlea and Island Prince Edward, Canada. It's a time of late 19th century and the story revolves around 11 years old orphan girl. Her name was Anne Shirley. This story is also inspired by an important event that happened in the England when almost 1 lakh orphan children were migrated from England to the Canada for the adoption purposes. Main purpose to provide them better future, but in Canada their foster parents treated them very harshly and they treated them just like slave, just like a maid, like that. And narrative technique is a third person omniscient technique has been used and genre is a children's literature. I want to tell you an important thing is that about the protagonist of this short story. Mark Twain said that the most lovable child in the fiction, who is Anne Shirley. This story is also linked with the autobiographical elements of the Lucy Maud Montgomery because she lost her mother at a very early age. Her father remarried and she has to spend the time in imagination and fantasies. Style, it's a typical late Victorian style and depiction of the realism and tone of the short story is informal and critical. Character analysis. Anne Shirley is the first character, main central character of this short story. 11 years old girl, फ्रैकल्ड फेस है, रेड हेयर्स हैं इसके, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, हैप्पी टॉकेटिव गर्ल है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, शी लव्स नेचर और ब्यूटी को एडमायर करती है और शी लाइक्स टू लिव इन द इमेजिनेशन एंड मोस्टली टाइम शी वॉज इन द थॉट्स ऑफ इमेजिनेशंस. इसी वजह से जो जितना भी काम वो परफॉर्म करती है वो जो चोर्स डेली होते हैं उसको जो है उल्टा सीधा करके परफॉर्म कर रही होती है. Gilbert Blythe, he is a protagonist, Avonlea boy, a handsome and smart, and became rival of the Anne Shirley. लेकिन with the passage of time, when they admitted in the Queen's Academy, उनकी जो राइवल वाली जो दुश्मनी वाली जो चीज़ है आपस में वो जो एक कंपटीशन है फिनिशअप हो जाता है उसे फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाती है. मैथ्यू कैथबर्ड एंड मैरेला कैथबर्ड बोथ आर सिबलिंग. They are brother and sister. And Matthew is 60 years old sibling and who lives at the Green Gables with his sister Marilla. And he's very shy. जब भी औरतों को देखता है ना तो खौफजदा हो जाता है और कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है. Marilla Cuthbert, she is a unmarried woman. उसकी मैथ्यू की सिस्टर होती है बट शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और यही जो है बच्ची को जो है ब्रॉट अप करती है, उसको देखभाल करती है, पालती है. और शी वॉज अनएबल टू एक्सप्रेस हर फीलिंग एंड इमोशन अबाउट द एंड. वो मोहब्बत करती लेकिन एक्सप्रेस नहीं करती बिकॉज शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड शी वॉन्ट्स के जो एन शुड बी कोरिलेट विद द मॉडर्न टाइम. जो उसका वक्त चल रहा है उस टाइम के साथ वो कोरिलेट कर सके और इमेजिनेशन और फैंटेसी की जो दुनिया से बाहर निकल कर एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ज़िंदगी को गुजारे. मिसेस थॉमस, Anne's first foster parents, she treated Anne as a harsh and unkind manner. After the death of her alcoholic husband, Mrs. Thomas gave up the Anne. Anne को छोड़ देती है. इस तरह पहली दफ़ा उसे अपने घर छोड़ने का जो है ना पेन जो है बियर करनी पड़ती है. सेकंड है मिसेस हार्मंट एंड शी इज़ द सेकंड फोस्टर पेरेंट. शी यूजेस द एन एज अ मेड. मैंने आपको पहले ही बताया था जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे जो कनाडा आते थे उनको किस तरह ट्रीट किया, एज अ मेड के तौर पर ट्रीट किया जाता था. या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि मैथ्यू कथबर्ड और जो मैरेला कथबर्ड है, दे बोथ वांट के उनके जो ग्रीन गैबल फॉर्म है उसमें कोई हेल्पिंग हैंड, कोई बॉय मिल जाए और वो एक तरह से उनकी एक्स्ट्रा जो है मदद हो सकेगी. और वो उन्हें यही लगा कि किसी तरीके से हम ऑर्फन चाइल्ड को अडॉप्ट कर लें. डायना बेरी, शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एन शार्ले एंड एट फर्स्ट टाइम इनकाउंटर, जब पहली दफ़ा ही वो एन शार्ले को देखती है तो उसे रेड हेयर्स गर्ल बहुत अच्छी लगती है और इस तरह वो दोनों फ्रेंडशिप में बंध जाती हैं. अब है मिनी बेरी, शी इज़ द सिस्टर ऑफ डियाना एंड शी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिवाइविंग द एन एंड द डियाना's फ्रेंडशिप. मिसेस
Morel Stacy. Miss Stacy is very important character. She is the teacher of Anne and also Gilbert, and she was very popular due to unorthodox and liberal teaching method in her students. लेकिन अपने स्टूडेंट में तो पॉपुलर थी, लेकिन बाकी जो लोग थे उसका जो लिबरल मेथड ऑफ टीचिंग था और गैर रवायती अंदाज जो पढ़ाने का था उससे कोई ख़ास खुश नहीं थे. बट शी इज़ द रोल मॉडल एंड मेंटोर फॉर एन. मिसेस रिचल लैंड नेबर में रहती थी, ठीक है, नेक्स्ट डोर मैथ्यू और मैरिला के, और चाइल्डलेस कपल था जिसमें मिसेस रिचल हमेशा नेगेटिव, आप देखें ये खातून जो है सोचती है और कहती है कि उसे अच्छे तरीके से मैरिला जो है उसे ब्रॉटअप नहीं कर सकती बच्ची को, और मिस्टर थॉमस जो है वो मिसेस रिचल लैंड के हस्बैंड हैं. इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट अगर हम डिटेल की तरफ जाएं तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. इन द स्टार्ट व्हेन द मैथ्यू एंड मैरिला रिक्वेस्टेड फॉर द ऑर्फन चाइल्ड, वो बॉय के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैथ्यू व्हेन अराइव्ड एट द station, what happened? In the month of June, when Matthew went to receive orphan child at the train station, orphan girl appeared instead of boy due to the orphanage blunder. वो लड़की को भेज देते हैं. वो तो चाह रहे हैं हेल्पिंग हैंड अपने ग्रीन गैबल्स फार्म है उसमें हेल्प आउट के लिए कोई उन्हें मिल जाए, लेकिन यहाँ एक बच्ची आ जाती है. अब वो क्या कहते हैं, इसको वापस भेजें, लेकिन आर्गुमेंट होता है. मैथ्यू जो इम्प्रेस्ड हो जाता है जो एन शार्ले से, बिकॉज बहुत लाइवली होती है और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती है. आखिर वो अपनी बहन को कन्विंस करता है. मायरेला जो थी वो कन्विंस्ड हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि इसको ब्रॉट अप करने में मैं किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करूँगी. इस तरह अगर हम डिफरेंट जो थीम्स हैं इसमें उनको देखें तो फर्स्ट थीम है होम एंड फैमिली. मैथ्यू एंड मैरिला डिसाइड टू अडॉप्ट ऑर्फन बॉय टू हेल्प आउट अराउंड द प्रिंस एडवर्ड आइलैंड होमस्टेड. क्या होता है, लेकिन 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल अपीयर्ड हो जाती है और वो मैरिला कंसिडर करती है एन इज़ नॉट अ यूजफुल पर्सन, कि हमारे किसी फ़ायदे के लिए नहीं, हम तो फार्म के लिए चाह रहे थे, लेकिन लड़की आ गई है अब हमारे किसी काम के नहीं है. विद द पैसेज ऑफ टाइम बोथ कथबर्ड्स रियलाइज दैट although the Anne needed the shelter and they need extra helping hands, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी अफेक्शन डेवलप हो जाती है और उन्हें ऐसे लगता है कि अब हम अपने हाउस को एक होम बनाएं रहने वाले लोगों के लिए, और उसी तरह पॉसिबल है अगर एन भी हमारे साथ मिलजुल कर अफेक्शन और लव के साथ रहे. लव टू मेक द ग्रीन गैबल अ रियल होम. और जो मैरिला होती है बाज़ दफ़ा वो जो एन उसको देख के कहती है और सोचती है, उसके जहन में आती है बातें कि आया helpless little creature who find itself once more caught in the trap from which it had escaped. कि ऐसी बच्ची जो पहली बार जब उसके फोस्टर पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं तो किस तरीके से अल्कोहलिक हस्बैंड की वजह से कभी छोड़ देते हैं, कभी वो उसे मेड के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उसे एक तरह से हेल्पलेस क्रिएचर महसूस होती है. शी वुड हैव एडमिटेड दैट शी लाइक्ड एन ने, दैट शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ एन. अब उसे पसंद करने लग जाती है, अब उसके बगैर रह नहीं सकती. Second theme is the friendship. When Anne came to the Green Gable, she makes her bosom friend to Diana Barry. अब वो से Diana Barry को कहती है, Oh Diana, do you think you can like me a little enough to be my bosom friend? और डियाना तो पहले ही इम्प्रेस है रेड हेयर्स गर्ल से, तो वो तो फ़ौरन ही हाँ कर देती है. इट विल बी जॉली टू हैव समबॉडी टू प्ले विद. आई हैव नो सिस्टर बिग एनफ. हर फर्स्ट इमेजिनरी फ्रेंड वॉज कैट मॉरिस. इसी तरीके से आपको बताया कि वो इमेजिनेशन के अंदर अपना टाइम स्पेंड करती है, कभी लेक्स को कभी लेन्स को नाम देती है और कभी कभार अपने रिफ्लेक्शन को देखकर खुद ही अपनी जो फ्रेंड्स का नाम देती है. हर रिफ्लेक्शन इन द ग्लास डोर ऑफ द बुक केस, और सम टाइम वो हर ओन इको इन द वुड्स शी कॉल द फ्रेंड. इसी तरीके से जो नेक्स्ट थीम है वो इमेजिनेशन वर्सेस सोशल एक्सपेक्टेशंस. हर इंसान जब इस सोसाइटी के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसे जो सोशल नॉर्म्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है. एंड इज़ गाइडेड बाय हर इमेजिनेशन एंड रोमांटिसिज्म, ठीक है, एंड बाय द जेनरस स्पिरिट. शी हैज़ ऑल द टाइम हर ओन थिंकिंग अबाउट द नेचर. वो देखती है लेक्स को लेन्स को और उनको नाम देती है, जैसे द वाइड वे ऑफ द डिलाइट, ठीक है, उनको नाम दे रही होती है. और अगर आप देखें, बट शी लाइक्स टू एडमायर द ब्यूटी एंड नेचर अराउंड हर. दैट इज़ वन कंसोलेशन व्हेन यू आर पुअर, देयर आर सो मैनी मोर थिंग्स यू कैन इमेजिन. जाहिर बात है आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो आप इर्द गिर्द चीज़ों से जो नेचर होता है इज़ ऑलवेज सोर्स ऑफ कम्फर्ट फॉर द ह्यूमन बींग, सोर्स ऑफ नर्चरिंग, सोर्स ऑफ रिलीफ आप दे रहे होते हैं, ठीक है.
तो नर्स भी होता है, मदर भी होता है, तो वो हमेशा उस नेचर से, उसकी ब्यूटी से इंस्पायर होती है और इमेजिनेशन में ही रहती है। माइनर हाउस होल्ड डिजास्टर सच एज बेकिंग एन इन एडिबल केक, जिसका रिजल्ट ये निकलता है वो ख्वाबो ख्यालों की दुनिया में रहने की वजह से ऐसा केक बेक करती है जो कि खाने के काबिल ही नहीं होता। इसी तरह छोटे छोटे जो चीज़ें उल्टी सीधी वो करती रहती है, और पोम जो होती है उसको परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की उल्टे सीधे चीज़ें चल रही होती हैं। जबकि मैरिला जो कथबर्ड होती है वो वेरी प्रैक्टिकल वीमेन होती है। शी वॉज स्ट्रिक्ट लेडी, शी हैज़ नो स्पेस फॉर द इमेजिनेशन एंड फन। रीजन क्या है? शी ट्राइज टू ब्रिंग अप एंड अकॉर्डिंग टू सोशल कोड्स दैट गाइड्स हर एक्शन ऑफ वेल बिहेव लेडी। एक उसकी फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रॉपर लेडी की तौर पर देखना चाहती है। शी इज़ वरिड फॉर द एंड दैट शी विल बी डिसअपॉइंटेड व्हेन रियलिटी डज नॉट लाइव अप टू हर एक्सपेक्टेशंस। इंसान को दुख होता है जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। नाउ वी विल डिस्कस द सिंबल। First one is the Anne red hairs. Anne red hair symbolizes her attitude towards her own self. जिस तरह वो अपने रेड हेयर से नफरत करती है, वो अपनी पर्सनालिटी से, लोनलीनेस है, बार बार घर को छोड़ना पड़ता है पेरेंट्स को, और मौत का शिकार हो जाती है, लोग उस पर हंसते हैं। सो इवन के ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसके इफ़ेक्ट उस हद तक लाइफ पर डालती हैं कि वो अपने आप से ही हेट करने लग जाती है। इन द स्टार्ट शी हेट्स देम and her disliking of red color hairs reveal her disliking towards her own self. They are lifelong sorrow. ऐसे वो हर ऐसी चीज़ जो कभी भी ज़िंदगी में दुख उसका ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज नो वन एवर लव्ड हर। एक के बाद एक, कभी फर्स्ट फोस्टर पेरेंट, फिर सेकंड फोस्टर पेरेंट्स, और अब ये अभी जो चल रही हैं चीज़ें में मैथ्यू और मैरिला जो कि वो स्ट्रिक्ट वुमेन है। इवन गिलबर्ट ब्लिथ मोक हर कैरेट, मॉक्स करता है उस पर, कहते हैं तुम गाजर हो, और इस तरीके से वो इस तरह से बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिस का भी शिकार होती है, रिजर्व हो जाती है, और आपने देखा होगा कि इंसान फिर खुद से बातें करने लग जाता है। इसी वजह से वो इमेजिनेशन की दुनिया में रहती है। शी डज नॉट अप्रूव ऑफ हर मिस्टेक्स एंड बैड बिहेवियर। लेटर शी लाइक्स हर रेड हेयर्स विच सिम्बलाइजेज दैट एक्सेप्टेंस ऑफ हर सेल्फ। जब मेच्योरिटी डेवलप होती है तो वो इसी सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम सेकेंड सिंबल को देखेंगे। The light from the Diana's window, and looks to the light from the Diana's window as a symbol of their eternal friendship. Light is also the symbol of hope. At the end of the short story, when she decided to stay Avonlea and left her ambition, क्या था कि हाई डिग्री वो कंप्लीट करे फॉर टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड एज मैरिला विद द पुअर विजन। लेकिन क्या होता है, मैथ्यू की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से, एंड शी हैज़ टू लीव द स्टडी एंड शी हैज़ टू मूव टूवर्ड्स द ग्रीन गैबल्स। ठीक है, तो ये उस टाइम के अंदर जब वो अपने एम्बिशन को, अपने ड्रीम को जो है हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए खुदाफिज कह देती है, तो उस टाइम, उस मुश्किल वक्त में इट गिव्स अ कंफर्ट टू हर। दिस लाइट इज़ अ सिंबल ऑफ लविंग फ्रेंडशिप बिटवीन द टू गर्ल्स दैट मेक द एन फील बेटर अबाउट सेक्रीफाइसिंग हर एम्बिशंस इन ऑर्डर टू डू व्हाट शी फील्स इज़ द राइट थिंग। क्योंकि अब उसके बूढ़े वालदैन मैथ्यू और मैरिला जो उसके क्या थे, फोस्टर पेरेंट्स थे, उनमें से मैथ्यू की डेथ हो गई है, और मैरिला जो है वो पुअर विजन का शिकार हो गई है, और वो बूढ़ी हो गई है। तो उसने अपनी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म किया एज ए चाइल्ड के तौर पर। कंक्लूजन अगर देखें तो विद द इनकरेजमेंट ऑफ मिस स्टैसी, बोथ एन एंड गिलबर्ट क्लियर्ड देयर एंट्रेंस एग्जाम एंड जॉइन द क्वींस अकेडमी and completed her degree in the 1 year instead of 2 because she was so much passionate. She got the prestigious Avery scholarship in English. With the scholarship money, she decided to complete the 4-year degree college. अब उसकी ये प्लान है। At the end of this sequel, she sacrificed her dream. अपने पेरेंट्स के लिए जो मैरिला और मैथ्यू ने उसके लिए किया था। Matthew died due to heart attack. Marilla also became a weak and old age now, and she is likely to go blind. And she left her passion due to the family. उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो फैमिली थी, और जो दुश्मनी थी गिलबर्ट की वो कन्वर्ट होगी फ्रेंडशिप में और एंड रोमांटिक लव रिलेशनशिप में। He left an opportunity of the teaching in Avonlea, so Anne can apply for this job. यहाँ पे theme of sacrifice है। Anne became optimistic about her present and the future alike, and she compared her future with the nature, beauty, promise, and mystery. Thank you very much.